اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتا ہے گویا وہ اسے خدا بنائے ہوئے ہے۔ یا علی مدد کا مطلب سادہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مولا علی کو اللہ کے مقابلے پر خدا تصور کر دیا۔ نہیں جی ہم تو انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں، نہیں جناب، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بندہ مان کے یا بغیر بندہ مان کے۔ جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہے، جی پیچھے اللہ ہی ہے، اچھا اللہ پیچھے رکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں حدیث میں لکھا ہوا نماز کا طریقہ، اور نہیں جی ہمارے امام صاحب نے بھی تو وہی کچھ بتایا نا، پیچھے تھے اتنے بھی نبی علیہ السلام نے، نبی علیہ السلام پیچھے رکھنے کے لیے، میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، اللہ پیچھے، رسول پیچھے، آگے تمہارے بابے۔ عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے کھائے ہیں تم نے رسول اللہ کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، اور غداری کی ہے اپنے دین کے ساتھ، ممبروں پہ چڑھ کے کہتے ہو قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ واہ، یہ کوئی یہودی یا نصرانی آ کے بات کرے ہم منہ توڑ دیں، جس طرح آج آگ لگانے کے اوپر قرآن کو ہمیں کتنا غصہ چڑھا ہوا ہے۔ تیرا مفتی ہر جمعے کو کھڑا ہو کے کہ قرآن اور بخاری ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، آگ تو یہ لگا رہا ہے، وہ آگ تو ایک دن تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ قرآن کے ملینز آف کاپیز دنیا میں موجود ہیں، ملینز آف حافظ قرآن ہے، قرآن کو کوئی آگ نہیں لگا سکتا، دنیا سے ختم نہیں کر سکتا۔ اصل جو چور چھپا ہوا ہے وہ تیرے اندر چھپا ہوا ہے۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ ایک عظیم الشان سورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے، اور اس میں ہم نے اپنی طرف سے کچھ چیزیں فرض کر دی ہیں۔ یہ شاہانہ انداز کسی اور سورت کا نہیں ہے جو اس سورت کا آغاز ہے، کہ یہ وہ عظیم الشان سورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی، اور اس میں ہم نے احکام مقرر فرمائے، ظاہر ہے بڑے عام احکام آنے والے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس میں ہم نے نازل فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ کی روشن آیات، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی بدکار عورت اور زنا کرنے والا مرد، فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، یعنی 100 کوڑے مرد کو اور 100 ہی عورت کو۔ اور اس میں امپلائڈ ہے کہ وہ اگر شادی شدہ نہ ہو، اس میں میں ڈیٹیل سے گفتگو انشاءاللہ کروں گا۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور دیکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا اسٹیبلش کرتے ہوئے، یہ حدود جاری کرتے ہوئے تمہارے دل میں کسی کے لیے نرمی نہ آ جائے، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور مشکات میں بھی موجود ہے، حدود میں جو نرمی کرنے والے معاملات ہیں اس چیپٹر کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فاطمہ نامی عورت، اس کی چوری کا مقدمہ پیش کیا گیا اور اس کے لیے سفارش کی گئی اسامہ ابن زید کے ذریعے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت جلال میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسپیشل ممبر رکھا گیا، آپ نے اصحاب کو خطبہ دیا علیہم رضوان، اور کہا تم سے اگلے لوگ اسی لیے ہلاک ہو گئے کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور غریب لوگوں کے لیے اور، اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر دیتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں صحابہ کرام کو ڈانٹا کہ تم اللہ کے حدود کے معاملے میں مجھ سے نرمی کا مطالبہ کرتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن جہاں اللہ کی حدود آتی تھی وہاں پھر رام والا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ پھر اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان کو اسٹیبلش کرنا ہوگا، ان کو جاری کرنا ہوگا۔ تو یہ دو الگ چیزیں ہیں، ان کو بات کو سمجھیں۔ تو یہاں قرآن حکیم میں ہے کہ ذرا تمہارے دل میں نرمی نہ آئے، ذرا رحم نہ آئے اس معاملے میں اللہ کے دین کی سزا کو اسٹیبلش کرتے ہوئے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، اور آخرت پر تمہیں ڈر ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہوگے، تو تم یہ حرکت نہیں کرو گے کہ تمہارے دل میں نرمی آ جائے۔ ولیشہد، اور اس
सजा के ऊपर, यानी ये जो सजा दी जा रही हो, 100 कोड़े लगाए जा रहे हो, इस पर गवाही दे अज़ाबहुमा, इस सजा के ऊपर ताइफतुम मिनल मुमिनीन, अहले ईमान का एक गिरोह इस पर गवाह भी हो, यानी पब्लिकली ये गुनाह की सजा एस्टैब्लिश की जाए, ताकि सजा एक को हो या दो को, और डेटरेंस और दहशत बन जाए बाकी पूरे माशरे के लिए। ये आज दहशत जो है वो कायम की जाए तो आप देखें किस तरीके से जिना खत्म होता है। दुनिया में सबसे कम जिना 2 मुल्कों में होता है, नंबर 1 सऊदीया, नंबर 2 ईरान, क्योंकि वहां पर इस्लामी सजाएं नाफिज हैं, और सबसे ज्यादा जिना अमेरिका के अंदर होता है। तो वैसे लोग कहते हैं बड़ी सख्त सजा है, हालांकि इन्हीं से पूछें कि अगर आप किसी गोरे से पूछ लें जो ये कहता है सजा सख्त है, उसको कोई सजा को तो छोड़ो, बताओ अगर तुम्हारी बच्ची के साथ कोई ये करे, वो कहेगा मैं गोली मार देगा उन्हें। तुम्हारी मां के साथ करे, वो कहेगा मैं गला काट दूं उसका। तो जब इस्लाम ने जब सजा रखी है तो इसको कहते हैं जालिमाना सजा है। और ये भी इसमें आगे चल के आएगा, ये इस तरह सजा एस्टैब्लिश नहीं होगी, बल्कि कम से कम 4 गवाह इस हवाले से पेश भी करने होंगे, फिर जाके ये सजा एस्टैब्लिश होगी। ये इतना आसान मामला नहीं है। और ज़ाहिर है ये सजा भी ज़िना बिल जबर के ऊपर जो है वो सिर्फ उसको ही होगी जो ये ज्यादती करेगा, जिसके साथ हुई उसके पर सजा नहीं। और अगर ज़िना बिल रज़ा करेंगे फिर दोनों के साथ ये मामला होगा। फिर शादीशुदा होंगे तो संसार किए जाएंगे, और गैर शादीशुदा होंगे तो उनको 100 कोड़ों की सजा दी जाएगी। इसमें मैं डिटेल से गुफ्तगू करता हूं, पहले इन आयात को हम कवर कर लेते हैं। तो डेटरस के लिए कहा गया कि पब्लिकली इस गुनाह के ऊपर लोग इसको वेट करेंगे, शहादत देंगे, ताकि बाकियों के लिए इबरत हो जाएगी। इस हवाले से दिल में कोई नरमी ना आए। अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानिया, ज़ानी को निकाह नहीं करना चाहिए मगर सिर्फ ज़ानिया के साथ ही। ये बात मुहावरतन की जा रही है कि ज़ानी तो है इस काबिल है कि उसको कोई ज़ानिया औरत ही मिले, किसी शरीफ औरत के काबिल नहीं है वो। औ मुशरिका, या फिर मुशरिका औरत के साथ। अब ये अजीब बात है कि दुनिया में जितने बदकारी में मुब्तला लोग हैं, अगर आप उनसे पूछें कि आपकी बीवी कैसे होनी चाहिए तो कहते हैं जी वो निकाब करें, और अपनी हरकतें उनकी आप देख लें किस किस्म की होती है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये जो इस तरह के जो बदकार मर्द है ना, ये तो काबिल इसके हैं कि इनको बदकार औरतें ही मिले, ये इन्हीं औरतों के काबिल है, या मुशरिका औरतों के। वज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ान, और ज़ानिया निकाह न करे मगर एक ज़ानी मर्द के साथ, औ मुशरिक या मुशरिक मर्द के साथ। वहुर्रिमा ज़ालिका अलल मुमिनीन, और ये जो ज़ानी औरतें हैं ये अहले ईमान मर्दों के लिए तो हराम कर दी गई है। इल्ला ये है कि कोई औरत तौबा कर ले बड़े सच्चे दिल के साथ और वो नेकी के रास्ते के ऊपर आ जाए, तो फिर उसको ज़ाहिर है उस गुनाह के ऊपर आद नहीं दिलाई जाएगी। इस किस्म की इमेज भी मुझे आती हैं लोगों की तरफ से कि हम ऐसी औरतें जो इस किस्म के मामलात में मुब्तला हैं, अगर वो सच्चे दिल से तौबा कर लें तो हम क्या उनके साथ निकाह कर सकते हैं? तो बहुत नेकी का काम है, और लेकिन उनको फिर उस माहौल से दूर रखा जाए, क्योंकि ऐसी औरतों को फिर इस किस्म की बुराई की आदत पड़ चुकी होती है। तो नेकी का काम है अगर वो तौबा कर लें। वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनात, और जो कोई तोहमत लगाते हैं मुहसिना पाक बाज पाक दामन औरतों पर, सुम्मा लम यअतू बिअरबाअती शुहदा, और उसके बाद वो 4 गवाह नहीं पेश कर सकते, यानी किसी पर तोहमत लगाई कि इसने ज़िना किया है, फिर 4 गवाह नहीं ला सके, और 4 गवाह भी ऐसे होने चाहिए जो एक्जैक्ट इंटरकोर्स की हालत में जिन्होंने देखा हो। बुखारी मुस्लिम की हदीस इस पर गवाह है। सिर्फ एक बिस्तरे पर देखने से उनके ऊपर हद नहीं जारी होगी, बल्कि इंटरकोर्स की हालत में, और 3 भी अगर देखेंगे, चाहे वो 3 देखने वाले सहाबी क्यों ना हो, तब भी स्टैब्लिश नहीं होगी जब तक 4 गवाह पूरे नहीं होंगे, क्योंकि सजा बहुत सख्त है। इसलिए फिर असल में इस्लाम कंडेम करता है कि अगर कोई ये बुराई देख भी रहा है उसका ऊपर पर्दा डाल दे। वो बुखारी मुस्लिम में हदीस आ रही है, ताकि माशरे में ये चीज ना फैले। फजलिदूहुम समानीना जल्दा, तो जो कोई ऐसी फिर तोहमत लगाते हैं, अब चाहे उन्होंने सही भी लगाई हुई है, अगर 4 गवाह नहीं ला सके तो उनको फिर 80 कोड़े लगाए जाएंगे। अब देखें उनको 100 करने वालों को 80 ना भी नेड़े नेड़े ही होने के तकरीबन है ना, ताकि भाई तुझे क्या जरूरत थी इस गुनाह को आम करने की, अदालत में पेश करने की, तूने कौन से नेकी कमा ली है, बजाय कि उनको समझाओ ठीक है तौबा कर ले। और ये भी याद रखें कि जिना जब अदालत में रिपोर्ट होगा ना, उसी वक्त और गवाहों के साथ फिर उसके ऊपर मामलात आगे जारी होंगे। अगर मर्द औरत ने जिना किया और उन्होंने अकेले में अल्लाह से तौबा कर ली तो ये तौबा काफी होगी, उनके ऊपर हद जारी करना जरूरी नहीं होगा।
वंस अदालत में मामला रिपोर्ट हो गया, फिर जो है उनके ऊपर हद जारी होगी अगर वो एतराफ़ जुर्म कर लेते हैं। और ये जरूरी नहीं है अगर किसी से गुनाह हो गया तो जाके एतराफ़ जुर्म करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी नापसंद फरमाया। आपके सामने इस तरह लोग आए और आपने उनसे रूह अनवर फेर लिए और फरमाया जाओ तौबा करो, अल्लाह ताला माफ करने वाला है। जब तक कि उन्होंने 4 दफा अपने खिलाफ खुद गवाही नहीं दे दी। मैं बुखारी मुस्लिम की हदीस भी इसमें पेश करूंगा। तो इस हवाले से लोग पूछते भी हैं तो तौबा करें और अल्लाह की तरफ रुजू लाएं। इसी तरीके से किसी शख्स ने चोरी की है तो चोरी करने के बाद उसे एहसास हुआ तो जिसकी उसने चोरी की उससे जाकर अलग से माफी मांग ले, तो फिर उसके हाथ नहीं काटे जाएंगे, वो माफी मांग लेना काफी होगा। लेकिन वंस अदालत में रिपोर्ट हो गया और वो पकड़ा गया, अब वो कह जी मैं माफी मांग लेना, मैं दुगना दे देना, नहीं। अब पब्लिकली जो कि रिपोर्ट हुआ है गुनाह, अब उसके हाथ काटे जाएंगे। वरना इस तरह की चीज जब पब्लिकली रिपोर्ट होती है फिर सजा नहीं दी जाती तो गुनाह फैलता है। इसकी हिकमत समझे, ये दहशत के लिए है, डेटरेंस के लिए है कि जब गुनाह अदालत में रिपोर्ट होगा तो अब अदालत का काम है सजा देना, अदरवाइज तो गुनाह आम हो जाएगा और लोगों को खुली छुट्टी मिलेगी। और जब चीज आम नहीं होगी, इस तरीके से पब्लिकली नहीं फैलेगी, फिर इस तरह के मामलात के ऊपर जो है वो उसके ऊपर पर्दा ही डाला जाएगा। बहरहाल अब इसमें मॉडर्न दौर के हवाले से ये भी गुफ्तगू की जाती है कि 4 गवाह नहीं मिले, अब किसी औरत के साथ जिना बिल जबर हुआ है तो अब वो कहां से 4 गवाहों को तलाश करे। तो उसमें फिर साइंटिफिकली जाहिर है कि मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि डीएनए टेस्ट और इन चीजों के जरिए बिल्कुल ईमानदारी के साथ कोई रिपोर्ट जनरेट करता है और इस तरह की चीजें एस्टेब्लिश हो जाती हैं, तो फिर इसमें इज्तिहाद करने की जरूरत है। जाहिर है कि इस्लाम ने जो 4 गवाहों का कहा है उस वक्त तो यही किया जा सकता था ना। इसी तरीके से अगर कोई वीडियो में इस तरह की चीज आ जाती है, जाहिर जाली वीडियो भी बन जाती है, उसमें पूरे तरीके से अगर तहकीक की जाए और किसी शख्स को उसकी वीडियो दिखाई जाती है और पब्लिकली वो आम हो जाती है और फिर वो खुद इतराफ जुर्म कर लेता है, फिर तो उसके ऊपर गवाह लाने की जरूरत नहीं। अगर वो इतराफ जुर्म कर लेता है तो फिर उसके ऊपर सजा जारी की जाए। इसी तरीके से अगर कोई औरत इसकी वजह से, क्योंकि ये ज़ियाउल हक के जमाने में भी हुदूद ऑर्डिनेंस पास किया गया, उसकी वजह से कई औरतें जिनके साथ ज्यादतियां हुई उल्टा उनको जेल में डाल दिया गया, उसकी वजह से इस्लाम की बड़ी बदनामी हुई, वो गवाह नहीं ला सकी। तो इसमें अब साइंस चूंकि तरक्की कर चुकी है और अगर डीएनए टेस्ट के जरिए ये चीजें एस्टेब्लिश हो जाती हैं कि वाकई इस तरह के कोई मामलात हुए हैं और वो पूरा डेफिनेट इल्म है, तो उसके बाद फिर किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। ज़ाहिर है उस वक्त तो इसी तरीके से ही काम किया जा सकता था ना कि 4 गवाहों को लाया जाता। तो इस मामले में जो है ना इज्तिहाद की जरूरत है। ज़ाहिर है इज्तिहाद का दरवाजा तो क़यामत तक के लिए खुला है। इस्लामी सजाएं कोई नहीं बदल सकता। ये जो कहते हैं ना शरीयत बदल दी है जी, अब वीडियो के ऊपर और डीएनए टेस्ट के ऊपर फैसले हो रहे हैं तो ये शरीयत बदल, शरीयत नहीं बदली। शरीयत तब बदली जाएगी जब कोई चोरी और जिना की सजा को बदल दे। हुदूद तो अपनी जगह मौजूद है, उस हुदूद तक पहुंचने का जरिया क्या है कि अगर वो मुजरिम खुद इतराफ जुर्म कर ले, मैं बुखारी मुस्लिम से हदीस पेश करूंगा, कोई गवाह नहीं है, उसने खुद इतराफ जुर्म कर लिया, एक औरत है उसने खुद इतराफ जुर्म कर लिया, तो अब पीछे कौन सी गुंजाइश रह जाती है। इस तरीके से अगर वीडियो सामने आ जाती है या कोई डीएनए टेस्ट आ जाता है और उसके साथ ये एस्टेब्लिश हो जाती है चीज, तो उसको सारी चीजें बताई जाए और पब्लिकली जब चीज आ जाए तो उसको सजा जरूर देनी चाहिए। वरना अगर किसी के साथ ऐसा मामला हो गया है, उसके ऊपर पर्दा रखता है तो जाहिर है वो ज्यादा बेहतर है। और अब तो मीडिया का दौर है, उल्टा मुसीबत ही पड़ जाती है, यानी वो इस तरीके से फिर जो है बदनामी ज्यादा हो जाती है। तो इस्लाम की जो हिकमत है कि गुनाह जो आए इस तरह का गुनाह, तो उसके ऊपर पर्दा डालने में ही आफियत है। अदरवाइज जो है वो मामलात बहुत ज्यादा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मैं आखिरी दफा दोजख की तरफ जाऊंगा अपने उम्मतियों को निकालने के लिए, जो अल्लाह मेरे लिए तादाद मुकर्रर करेगा, उसके बाद मुझे दरोगाए दोजख मालिक अलैहिस्सलाम कहेंगे कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अब आपका कोई उम्मती दोजख में नहीं है सवाए उस शख्स के कि जिसको कुरान ने जन्नत में जाने से रोक लिया है और वो कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा, उसको आप भी जन्नत में नहीं लेके जा सकते। कुरान ने किसको जन्नत में जाने से रोक लिया है? कुरान से ही पूछ लेते हैं। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़ालिमीन मिन अंसार। बेशक जो कोई अल्लाह के साथ शिर्क करे उस पे अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी है, उसका ठिकाना दोज़ख है और वहां उसका कोई मददगार नहीं होगा। हत्ता कि बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह ने हर नबी को एक दुआ दी जो उसने इस दुनिया में कर ली और मैंने अपनी दुआ अपनी उम्मत के लिए संभाल के रखी है। मेरी इस दुआ से मेरी हर उम्मती को नफा पहुंचेगा क़यामत वाले दिन इस दुआ शफाअत से, सवाए उस शख्स के कि जिसने अल्लाह ताला के साथ दुनिया में किसी किस्म का शिर्क किया।